Good morning, students. Today I am going to proceed the same chapter, The Alien Planet, which has been written by Nani Palkiwala. In the previous lecture, I told you about how the forests precede mankind and deserts follow. As we know very well that here we are harming the world's ancient patronymy. Here the world's ancient patronymy means here tropical forest. We are harming the tropical forest at the present era at the rate of 40 to 50 million acres a year. And the meaning of eroding means here the decreasing at the rate of 40 to 50 million acres a year. And growing use of dung for burning deprives the soil of an important natural fertilizer. We're also committing one mistake. The mistake is that here not only we are harming the forest as well as because of our own use, because of our own fuel, we are using dung. The result is that here because earlier what happens here, the dung was used as a natural fertilizer, but in the present era we are using the dung specially for cooking food. The result is that here in such a way we are not able to gain natural fertilizer. So dung has been categorized as a natural fertilizer. The World Bank estimates that five-fold increase in the rate of forest planting is needed to cope with the expected fuel wood demand in the year 2000. You know very well that here this chapter has been written by Nani Palkiwala uh, in the form of article, especially in 1994. And what does he say here? He wants to say here that here, if we have to complete, uh, the according to the data of World Bank is that here कि यहाँ पर जो वर्ल्ड बैंक का एस्टिमेट है a five-fold increase in the rate of forest planting is needed to cope with the expected fuel wood demand in the year. कि जो नीड हमें 2000 में जितनी फ्यूल की हमें डिमांड है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर 5-fold यानी कि अगर मैं कहूँ कि जिस हिसाब से हमें 2000 में कोई चीज़ चाहिए उसके लिए हमें अभी से अगर हम एक चीज़ ग्रो करते हैं, एक प्लांट ग्रो करते हैं, एक प्लांट की जगह हमें 5 प्लांट्स को क्या करना पड़ेगा, ग्रो करना पड़ेगा. जेम्स स्मिथ, द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, सेड द अदर डे कि who was James Smith? James Smith was the president of the World Resource Institute. What did he say? He told here that here we were saying that we are losing the forest at an acre a second, but the reality is different here. कि हम ये कह रहे हैं कि हम लगातार फॉरेस्ट को एक सेकंड में लगभग 1 एकड़ के अराउंड लूज कर रहे हैं, पर रियलिटी कुछ और ही है. अगर रियल डाटा अगर ऑब्जर्व करें तो रियलिटी इज़ दैट ईयर कि नॉट ओनली एन एकड़ अ सेकेंड बल्कि कितना हम लूज़ कर रहे हैं, एक सेकेंड में लगभग 1.5 एकड़ फॉरेस्ट को लगातार खोते जा रहे हैं, हार्म कर रहे हैं, और रियली इट्स हैज़ रीच एट अलार्मिंग रेट. Article 48 of the Constitution of India provides that the states shall endeavor to protect and improve the environment. Okay, what has been written in the Article 48 of the Constitution कि जो हमारा भारत का संविधान है उसमें बहुत सारे आर्टिकल्स हैं. उस आर्टिकल 48A में क्या बताया गया है कि स्टेट विल हैव टू डू एफर्ट्स, स्टेट को एफर्ट्स करने पड़ेंगे किस चीज़ के लिए कि नाउ स्टेट हैज़ टू डू एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट. इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट to protect and improve the environment, and it is its own duty to safeguard the forest as well as the wildlife of the country. It has been mentioned in the Article 48A. But what causes endless anguish is the fact that laws are never respected nor enforced in India. पर एक बहुत ही बड़ी आयरनी की बात है, एक बहुत ही ज़्यादा मेंटल पेन देने वाली बात है. द रियल फैक्ट इज़ दैट हियर कि इन इंडिया लॉज आर मेड, कानून बनाए तो जाते हैं बट दे आर नेवर रिस्पेक्टेड. बस को ना तो रिस्पेक्ट दी जाती है और ना ही इसको फोर्सफुली
एक्सेप्ट किया जाता है और ना ही फोर्सफुली यहाँ पर उस चीज़ को फोर्स किया जाता है। वी कैन ऑब्जर्व इन द फॉर्म ऑफ एग्जाम्पल फॉर इंस्टांस कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ने कास्टिज्म को बहुत समय पहले ही ख़त्म कर दिया था, अनटचेबिलिटी को, बॉन्डेड लेबर को, बॉन्डेड लेबर में बंधक मजदूर के लिए कहा जाता है, शैल बी अबॉलिश, इसको अबॉलिश किया जाना चाहिए, इसको फिनिश किया जाना चाहिए। लेकिन but they flourish, therefore the things casteism, untouchability or bonded labor, but they flourish shamelessly even after 44 years of the uh, of the operation of the constitution। तो इतने लंबे समय के बावजूद भी it was said, it was usually said that when our constitution was set in a 1950, अब now 1970 is there, it means 70 years have passed। बुक के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इतने ईयर्स हो गए हैं, लेकिन क्योंकि दिस आर्टिकल वाज रिटन इन 1994, तो हम 44 ईयर्स उसके अकॉर्डिंग है। बट हियर 70 ईयर्स की बात की जाए प्रेजेंट एरा में, हम अगर हम माने तो 70 ईयर्स हो गए हैं, लेकिन अभी भी कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी, बॉन्डेड लेबर ये अभी भी फ्लोरिश कर रही है even after 70 years of the operation of the constitution। A recent report of our parliament estimates committee has highlighted कि अभी जो रिसेंट रिपोर्ट प्रेजेंट करेगी 1994 की बात है यहाँ पर, उसमें क्या बताया गया है, द नियर कैटास्ट्रोफिक डिप्लेशन ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट ओवर द लास्ट 4 डिकेड्स, कि अगर मैं 40 ईयर्स की बात करूँ, डिकेड्स मीन्स द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, और 4 डिकेड्स का मतलब हो गया 40 डिकेड्स, 40 ईयर्स सॉरी। तो पिछले 40 ईयर्स की बात की जाए तो यहाँ पर अभी तक ये कहा गया है कि लगभग ये कंडीशन कहाँ तक पहुँच चुकी है, बहुत ही डिस्ट्रक्टिव लेवल तक पहुँच चुकी है, जिस तरह से हम इंडिया के फॉरेस्ट को लगातार हार्म करते जा रहे हैं। India, according to reliable data, is losing its forest at the rate of 3.7 million acres a year। अगर इंडिया के रिलायबल डाटा को ऑब्जर्व किया जाए तो इंडिया इज़ लूजिंग इट्स फॉरेस्ट, किस रेट पर खो रहे हैं इंडिया अपने फॉरेस्ट को, लगभग 3.7 मिलियन एकर्स ए ईयर, एक साल में हम लगभग 3.7 मिलियन एकर्स फॉरेस्ट को लगातार खोते जा रहे हैं। लार्ज एरियाज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज फॉरेस्ट लैंड, कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो बहुत सारे लार्ज एरियाज हैं, उनको ऑफिशियल वे में ऐसे लगता है कि यहाँ पर फॉरेस्ट है, पर लेकिन डाटा के अकॉर्डिंग, जहाँ तक प्लानिंग के अकॉर्डिंग ऐसे लगता है कि वहाँ पर बड़े बड़े एरियाज में फॉरेस्ट है, पर रियलिटी इससे डिफरेंट है। एक्चुअली वो एरिया आर ऑलरेडी वर्चुअली ट्रीलेस, वहाँ पर ट्री है ही नहीं है, प्रैक्टिकली वहाँ पे कोई ट्री नहीं है, लेकिन डाटा के अकॉर्डिंग ऐसा दिखाया गया है कि वहाँ पर फॉरेस्ट है। द एक्चुअल लॉस ऑफ फॉरेस्ट इज एस्टिमेटेड to be about 8 times the rate indicated by government states। It means that here, if India is saying about 1 lakh, तो reality would be 8 lakh। इसका मतलब जिस हिसाब से हम फॉरेस्ट को लूज़ कर रहे हैं, तो जितना इंडिया का स्टेटिस कहता है, इंडिया का डाटा कह रहा है, तो उसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर ले तो रियलिटी इज़ देयर। कि अगर हम यहाँ पर, मैंने अभी बताया आपको जैसे कि अगर इंडिया में मेंशन किया गया कि हम इतने लाख एरिया को लूज़ कर रहे हैं, तो रियलिटी वहाँ 1 लाख नहीं है, वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 8 लाख इज देयर। तो इट मीन्स हियर अ 3-year स्टडी यूजिंग सैटेलाइट्स एंड एरियल फोटोग्राफी कंडक्टेड बाय द यूएन, कि यूएन ने जो 3 साल का स्टडी करा सैटेलाइट्स का यूज़ करके, जो एरियल फोटोग्राफी जो उन्होंने लिया विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स में भी देयर, तो यह वार्न किया गया वाज दैट हियर एनवायरनमेंट हैज़ डेटरेटेड सो बैडली, कि जिस हिसाब से हम एनवायरनमेंट को हार्म कर रहे हैं, कंडीशन इतनी पीटिएबल बन चुकी है कि वी आर मेकिंग द वर्स्ट सिचुएशन हियर, कि यहाँ पर इससे बहुत सारी कंट्रीज़ अफेक्टेड हुई हैं, जिसमें 88 कंट्रीज़ का रेफरेंस भी यहाँ पर इंक्लूड करा गया है। देयर कैन बी नो डाउट दैट द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड population is one of the strongest factors distorting the future of society। As we know very well that the growth of world population is the main factor or the strongest factor
विच इज़ हार्मिंग द फ्यूचर ऑफ द सोसाइटी। कि जिस हिसाब से इंक्रीज़ हो रही है पॉपुलेशन, एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमारे फ्यूचर को हार्म कर रहा है। इट टुक मैनकाइंड मोर दैन $1 million years टू द फर्स्ट टू रीच फर्स्ट बिलियन। कि यहाँ पर पॉपुलेशन की अगर बात की जाए, अगर मैं ह्यूमन बींग की बात करूँ, मैनकाइंड की बात करूँ, तो लगभग 1 बिलियन जो हमारी पॉपुलेशन पहुँची, उसके लिए 1 बिलियन पॉपुलेशन पहुँचने के लिए लगभग मिलियन ईयर्स लगे। दैट वॉज द वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड द ईयर, बट बाय द ईयर 1900, कि मतलब 1 बिलियन पॉपुलेशन वर्ल्ड की कब थी, 1 बिलियन पॉपुलेशन को पहुंचने के लिए वर्ल्ड में मिलियन ईयर्स से भी ज़्यादा लग गया। लेकिन 1900 में ड्रास्टिक चेंज आया, एक 2 बिलियन और ऐड हो गया, मतलब पॉपुलेशन और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। एंड अगर मैं बात यहाँ 20th सेंचुरी की करूँ, तो यहाँ पर 3.7 बिलियन हैज़ एडेड। द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड एट 5.7 बिलियन। अगर प्रेजेंट पॉपुलेशन की बात की जाए तो ये एस्टिमेट कितना है, 5.7 बिलियन। इट मीन्स दैट ईयर अगर मैं और प्रेजेंट की बात करूँ तो रियली इट हैज़ रीच एट दिस वेरी कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन। Every 4 days, the population increased by 1 million. This thing really shock us by when we can come to know that year कि प्रत्येक 4 दिन में रिजल्ट ये हो रहा है कि जो पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रही है वो लगभग कितनी हो रही है, विद इन 4 days जो पॉपुलेशन इंक्रीज होने का डाटा कितना है, लगभग 1 मिलियन स्टिल देयर। Fertility falls, income rise. You must mark this line here, very important. Fertility falls as income rise, education spread. कि fertility falls का मतलब है जहाँ भी पॉपुलेशन इंक्रीज, जहाँ पर भी पॉपुलेशन का लेवल डाउन है, जहाँ पर भी पॉपुलेशन कम है, फर्टिलिटी मतलब पॉपुलेशन से मतलब है कि जहाँ पर फर्टिलिटी रेट ज़्यादा है या फर्टिलिटी रेट जहाँ पर कम है, तो जहाँ पर भी फर्टिलिटी रेट कम है, जहाँ पर पॉपुलेशन कम है, वहाँ पर हमेशा इनकम राइज मिलती है, एजुकेशन मिलती है और कंडीशन का इम्प्रूवमेंट मिलेगा। इट मीन्स दैट योर lack of education, lack of population means we are lack population means here we are able to gain more education, at least your economic condition will instantly improve. इसलिए इट हैज़ मीन्स दैट अगर मैं यहाँ पर अपोजिट कर दूँ, अगर मैं यहाँ पर कहूँ फर्टिलिटी राइजेस, तो यहाँ पर इनकम फॉल्स हो जाएगी और एजुकेशन वुड नॉट बी स्पेंड इन सच ए वे एज वेल ऑब्जर्विंग। कि यहाँ पर फर्टिलिटी जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ पर इनकम क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, एजुकेशन इतना इंक्रीज़ नहीं कर पाएगी और कंडीशन बहुत ही ड्रास्टिक स्टेट पर होगी। इसका मतलब ज़्यादा पॉपुलेशन तो कम रिसोर्सेज। दिस डेवलपमेंट इज़ द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव। इसके लिए द बेस्ट सोल्यूशन इज दैट ईयर इफ़ वी हैव टू रियल डेवलपमेंट, तो इसके लिए सबसे मेन पॉजिटिव स्टेप ये क्या है कि वी मस्ट कंट्रोल द पॉपुलेशन। Contraceptive means birth step that is adopted for to control the birth rate. Then itself may not be possible if the present increase number continues. It means that here it is a high time we must do something to control the level of the population. If the condition would be continue in such a way, the day is not far, we shall have to face a drastic situation.